Welcome everybody. This is our second class in series of NEET previous year questions for chapter System of Particles and Rotational Motion of class 11. Before this we have made one video in this series and you can find that video on our channel. Name of channel is Point Basics and it can be found under a playlist section. There is a dedicated playlist for NEET previous year's questions of physics. So you can go and find out there this previous video and also videos of other chapters which we have completed. We have started similar series for JEE mains previous year question also. So you can also check those out. And if you found these videos useful or helpful, then do hit like button, share them as much as possible and subscribe to our channel. It helps a lot. Also, if you want to support us, then you can scan these QR codes and donate whatever amount you can. With this amount, we will be able to we will provide you new books, questions, new guest papers, and also better quality videos with better computer hardware. So with this, let's start today's video. We have completed up to, I think, question number 21 or something in previous video. Yes, here, till here. We have completed in previous video. Let's start in the next video. So first question means question number 22. If F is the force acting on a particle having position vector r and torque of this force about the origin, then तो यहाँ पे statements given है और हमें ये बताना है कि कौन सी statement सही है कौन सी statement गलत है. So as we know that जो torque होती है torque का formula होता है r cross f, means torque is perpendicular to radius and torque is perpendicular to force. तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एक साइड यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट्स दिए गए हैं दोनों साइड पे. तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं टॉर्क डॉट आर का, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है और डॉट प्रोडक्ट के अंदर कोज ऑफ एंगल आता है, कोज ऑफ 90 जीरो होता है, तो टॉर्क डॉट आर जीरो हो जाएगा. और सिमिलरली टॉर्क डॉट एफ भी जीरो हो जाएगा बिकॉज टॉर्क और एफ के अंदर भी 90 डिग्री का एंगल है. सो फ्रॉम दिस we can conclude that जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. A particle of mass m moves in xy plane with a velocity v along a straight line AB. ये स्ट्रेट लाइन AB के along मूव कर रहा है. If the angular momentum of the particle with respect to origin O is LA when it is at point A and LB when it is at point B, then हमें LA और LB में relation find out करना है. So let us draw, देखो, so that हम proper way में relation find out कर सकें. Now let us draw the line also. सपोज ये पार्टिकल के मोशन की लाइन है और यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं. ये है पॉइंट ए और यहाँ पे है पॉइंट बी. नाउ हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है. तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो M इंटू आर क्रॉस वी. मीन्स आर और वी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा और उसके लिए हमें साइन ऑफ एंगल चाहिए. तो जो ए पॉइंट है इसके लिए जो रेडियस वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे पॉइंट करेगा. ये ए पॉइंट के लिए रेडियस वेक्टर होगा और सिमिलरली जो बी पॉइंट है उसके लिए रेडियस वेक्टर कुछ ऐसे पॉइंट करेगा. नाउ जब हम ए की बात करें तो ये जो आपको ऑरेंज लाइन शो कर रही है ए बी, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, उसके पाथ को रिप्रेजेंट करती है. तो जो पाथ की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी. सो अगर यहाँ पे हम O लगा दें तो जो OA है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है और जो ये AB है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है.
और जो L है हमारे पास उसके अंदर क्या है, M R क्रॉस V। तो इसको अगर आप सॉर्ट आउट करते हो तो इट विल बी M R का मैग्नीट्यूड V का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा आएगा। और यहाँ पे साइन थीटा कौन सा एंगल होगा, जो R से V की तरफ जाएगा, R से V की तरफ जाएगा वो एंगल होगा साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में R और से V के बीच में जाने वाला। और डायरेक्शन क्या होगी, काउंटर क्लॉकवाइज। लेट मी क्लियर दिस। अगर आप कर रहे हो, अगर आप A क्रॉस B कर रहे हो, सपोज आप A क्रॉस B कर रहे हो और आपके पास जो A है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। तो जब आप A क्रॉस B कर रहे हो तो आपका एंगल A से स्टार्ट होके B तक जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज, और ये होगा आपको थीटा देगा। सपोज कीजिए हम रिवर्स कर देते हैं, ये B है और ये A है और अभी भी आपको A क्रॉस B करना है। तो अब आपका एंगल A से स्टार्ट होगा, बिकॉज A से स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्ट, और ये B तक जाएगा ऐसे, और ये एंगल होगा कंप्लीट थीटा, ना कि ये वाला। तो इट मैटर्स कि आप कहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करते हो, किसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है। डॉट प्रोडक्ट में इशू नहीं होता, बट क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में आपने ये भी किया है दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A। सो यहाँ पे एंगल इंपॉर्टेंट है और किसके साथ मेजर हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो कमिंग बैक हियर, जब हम A पॉइंट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो बिकॉज R क्रॉस V करना है तो एंगल रेडियस से स्टार्ट होके वेलोसिटी में जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ये हो जाएगा, रेडियस से स्टार्ट होके, ये रेडियस वेक्टर है व्हाइट वाला, और जो ऑरेंज वाला है ये वेलोसिटी वेक्टर है। सो एंगल आपका रेडियस से स्टार्ट होगा और वेलोसिटी तक जाएगा। तो आप इसको क्या अज्यूम कर सकते हो, अगर इस छोटे वाले पार्ट को अगर आप मीन्स ये इस ओनली ये जो स्मॉल पार्ट है, अगर आप इसको फाई अज्यूम करते हो तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 5। और इसको फाई अज्यूम करने का रीजन क्या है कि अगर ये फाई होता है तो ये वाला हिस्सा भी फाई हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। एक ट्रायंगल, ये ऐसे हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। लेट मी चूज डिफरेंट कलर, सो ब्राइटर कॉन्ट्रास्ट। एक ऐसे यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाते हैं जो कि राइट एंगल, हम ए बी यूज कर चुके हैं तो हम इसको डी दे देते हैं। तो अब अगर आप ट्रायंगल देखते हो, ट्रायंगल और ये कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ डी ए, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। लेट मी ड्रॉ इट हेयर अलग से। इसमें ये आपकी वेलोसिटी वेक्टर है, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो इसको ऐसे क्रॉस कर रहा है, और ये आपका ऐसे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ये वेलोसिटी को डोनेट करता है और ये रेडियस को डोनेट करता है ए पॉइंट के लिए, और ये है पॉइंट डी, ये है पॉइंट ए, और ये है पॉइंट ओ। सो और यहाँ पे एंगल ये है फाई। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखते हो तो आप ये बता सकते हो इजिली दैट जो ओडी है, यहाँ पे ओडी हो जाएगा आर ऑफ साइन फाई। और इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे कि अगर हम एल ऑफ ए लिखते हैं, अगर हम राइट करें एल ऑफ ए, तो ये हो जाएगा मास टाइम्स आर ए वेलोसिटी एट ए इंटू साइन फाई। और हमें ये पता है कि आर साइन फाई किसके इक्वल है, ओडी के इक्वल है। सो एम वी ए इंटू ओडी, ये आ जाता है एंगुलर मोमेंटम फॉर पॉइंट
ए। सिमिलरली अगर हम पॉइंट बी के लिए करें कैलकुलेशंस, तो यहाँ पे हम एंगल मान सकते हैं अब थीटा। तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और ये एंगल फिर से हो जाएगा थीटा। तो इस सिनेरियो में जो आपकी ट्रायंगल बनेगी, अब आपकी ट्रायंगल बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी बी, ये कंप्लीट ट्रायंगल। और इसमें भी आपके सिनेरियो ऐसा ही होगा। ये तो आर ए था, की बार भी सेम सिनेरियो होगा। जस्ट लेट मी कॉपी इट, पेस्ट। अब जस्ट नेमिंग चेंज हो जाएगी यहाँ पे, ये अब बी पॉइंट होगा और ये एंगल बदल जाएगा। अब ये बी पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये ओ पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया। ये एंगल अब की बार हमने थीटा लिया, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये है आर बी। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखते हो तो इस ट्रायंगल में भी जो ओडी है वो हो जाएगा आर बी ऑफ साइन थीटा। और अब अगर आप एल ऑफ बी निकालते हो, एंगुलर मोमेंटम फॉर पार्टिकल एट पॉइंट बी, तो वो होगा m इंटू आर बी इंटू वी बी इंटू साइन ऑफ थीटा, और ये आर बी साइन थीटा अगेन क्या हो जाएगा ओडी। सो ये हो जाएगा m वी बी ओडी। तो आपके पास दोनों एंगुलर मोमेंटम्स के लिए वैल्यू आ गई। अब देखो दोनों में मास सेम है, दोनों में ओडी सेम है, तो सिर्फ वेलोसिटी का डिफरेंस है कि ए पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है और बी पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है। और अगर आप ध्यान देते हो यहाँ पे वेलोसिटी v अलोंग ए बी, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि जो वेलोसिटी है वो दोनों पॉइंट्स के लिए अलग अलग है। दोनों पॉइंट्स के लिए वेलोसिटी इक्वल है, मींस अगर दोनों के लिए वेलोसिटी इक्वल है तो इट मींस एल ए इज इक्वल टू है एम वी इंटू ओ डी, और एल बी भी एम वी ओ डी। और यहाँ से आप देख सकते हो दैट एल ए इज इक्वल टू एल बी, तो दोनों के एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के इक्वल है। एंड फ्रॉम हियर ऑप्शन जो ए होगा, दिस विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Two bodies have their moment of inertia I and 2I respectively about axis of rotation. If their kinetic energy of rotation are equal, then angular momentums will be in the ratio of. So, जैसे आपके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है, दैट लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। यहाँ पे p क्या है, लीनियर मोमेंटम। सिमिलरली जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर बाय 2m। सो ये गिवन है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से ही है। तो ये मीनिंग गिवन है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो उनके एंगुलर मोमेंटम का रेशियो हमें बताना है। तो के ई वन इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 2m, और के ई टू क्या हो जाएगी, ये एल वन स्क्वायर बाय नॉट 2m, सॉरी यहाँ पे आई आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, मास का रोटेशनल लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो एल वन स्क्वायर बाय 2i1, और k2 हो जाएगा L2 स्क्वायर बाय 2i2। अब बिकॉज ये गिवन है कि ये दोनों काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो मींस ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल है। इसका मीनिंग हो गया L1 स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ i1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ i2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट L1 by L2 whole square is equal to I1 by I2, और जो L1 by L2 हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I1 by I2। और यहाँ पे अगर हम देखें तो I1 और I2 का रिलेशन क्या है, I1 is I और I2 is 2I, तो ये हो जाएगा 1/2, और 1 by का अंडर रूट होता है 1 by अंडर रूट 2।
So option B is the right answer. Next question. A uniform rod of length 200 centimeter and mass 500 gram is balanced on a wedge placed at 40 centimeter mark. तो यहाँ पे ये पूरा सिस्टम 40 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस है. A mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter. यहाँ पे ये suspended है 20 सेंटीमीटर पे 2 kg का मास. Another mass M यहाँ पे सस्पेंड किया गया है at 160 centimeter. The value of M such that rod is in equilibrium. ठीक, rod equilibrium में रहे, हमें यहाँ पे वैल्यू सच ऐसी वैल्यू को फाइंड आउट करना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सारे के सारे जो यहाँ पे फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे हम उनको आपको शो कर देते हैं. तो सपोज कीजिए ये रोड है, इस रोड पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ये 2 kg का फोर्स है जो डाउनवर्ड होगा, एक इस रोड के यहाँ पे जो 40 सेंटीमीटर का मार्क है यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी अपवर्ड. सिमिलरली यहाँ पे जो रोड है उसका मास भी होगा, और वो कहाँ पे होगा, बिकॉज जो रोड की लेंथ वो 200 सेंटीमीटर है तो वो 100 सेंटीमीटर मार्क पे रोड का मास नीचे करना होगा. एंड जो लास्ट है 160 सेंटीमीटर पे एम मास है. सो लेट मी राइट दोस. ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर पे क्या एक्ट कर रहा है, 20 kg का मास यानी कि 20 न्यूटन डाउनवर्ड है. जो 40 सेंटीमीटर है ये वाला, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, ऊपर की तरफ होगी. और नॉर्मल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि ये एक प्लैंक के ऊपर रखा हुआ है और इसकी वजह से यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी. नाउ ये क्या है, ये है मास ऑफ रोड, और वो कितना है 500 ग्राम्स है. 500 ग्राम्स मीन्स हाफ के जी यानी कि 5 न्यूटन. रोड का मास नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है 5 न्यूटन. और इसका डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, ये रोड के सेंटर पे एक्ट करेगा. रोड का सेंटर होगा, रोड की लेंथ 200 मीटर है तो रोड का सेंटर हो जाएगा 100 मीटर. सो ये डिस्टेंस हो गया 100 सेंटीमीटर, सॉरी. और जो ये वाला मास है ये m है तो इसका mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा. और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये है 160 सेंटीमीटर. सो दीज आर द फोर्सेस जो यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे अननोन क्या क्या है, हमारे पास n अननोन है और mg अननोन है. और हम यहाँ पे पॉइंट्स दे देते हैं. इसको हम बोल देते हैं पॉइंट O, ये हो जाएगा A, ये B और ये C. नाउ ये बोला गया है कि जो रोड है वो इक्विलिब्रियम है, मींस यहाँ पे जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है वो फॉलो होगा. तो अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिख सकते हैं दैट n इज इक्वल टू 20 प्लस 5 प्लस mg. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई कि ऊपर के फोर्स जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं उनके इक्वल होंगे. बट यहाँ पे बिकॉज हमारे पास n भी अननोन है, mg भी अननोन है, तो हम इससे इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो अगर हमें प्रॉपर वे में इक्वेशन को सोल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, दैट हम यहाँ पे जो अब पॉइंट O है, बिकॉज रोड इक्विलिब्रियम में है, सो रोड इज नॉट रोटेटिंग, रोड रोटेट नहीं कर रही. तो मीन्स जो टॉर्क है वो जीरो होगी. और आप किसी भी पॉइंट के अराउंड टॉर्क ले सकते हो, सभी पॉइंट्स के अराउंड जो टॉर्क है वो जीरो होनी चाहिए. तो अगर हम O पॉइंट के अराउंड लें, अबाउट पॉइंट O, तो लेट अस डू दिस. अगर हम O पॉइंट के अराउंड लेते हैं तो O पॉइंट के अराउंड जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका तो कोई टॉर्क होगा ही नहीं, बिकॉज ये तो उसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे टॉर्क होगा 20 न्यूटन का, 5 न्यूटन का और mg का. अब अगर आप देखो तो जो 20 न्यूटन है ये किस टाइप की रोटेशन देगा, ये देगा एंटी क्लॉक रोटेशन यानी कि पॉजिटिव टॉर्क देगा. और 5 न्यूटन क्लॉकवाइज टॉर्क देगा तो यानी नेगेटिव. और mg भी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा यानी कि
यानी कि टॉर्क बाय 20 न्यूटन शुड बी इक्वल टू, बैलेंस करने के लिए, टॉर्क बाय 5 न्यूटन प्लस टॉर्क बाय mg न्यूटन। और अगर आप ओनली डायरेक्शन से देखना चाहते हो तो इसकी टॉर्क पॉजिटिव होगी, इन दोनों की नेगेटिव होगी, और उनका नेट सम 0 होना चाहिए। सो 20 न्यूटन की टॉर्क हो जाएगी 20 इंटू डिस्टेंस। 20 न्यूटन वाले का डिस्टेंस है पॉइंट ओ से। अब हमें डिस्टेंसेस भी पॉइंट ओ से देखने होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारा ओ पॉइंट का डिस्टेंस है यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से, दैट इज आई थिंक 40 सेंटीमीटर। यस 40 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस है 40। तो ओ का स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ से स्टार्टिंग लाइन से 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और स्टार्टिंग से ए का 20 है, तो ओ से ए का डिस्टेंस हो जाता है 20 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू टॉर्क ऑफ 5 न्यूटन। तो 5, अब 5 का ओ से डिस्टेंस कितना होगा? अब देखिए, स्टार्टिंग से 5 न्यूटन का डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, और जो ओ है इसका स्टार्टिंग से डिस्टेंस है 40, तो ये बीच वाला बन जाता है 60 सेंटीमीटर, प्लस टॉर्क ऑफ mg। तो mg के लिए टॉर्क होगा mg मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस इसका 160 है, और स्टार्टिंग से ओ तक का 40 है, तो ये वाला डिस्टेंस बच जाता है 140 सेंटीमीटर। सो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ये हो जाएगा 400, ये 300 होगा, तो माइनस इधर आके हो जाएगा, ये होगा 10m और इंटू 140। सो 100 इज इक्वल टू 10m इंटू 140। तो अगर हम ये दो जीरोस कैंसिल कर दें तो m आ जाता है 1/40, ये आता है किलोग्राम में। 1/40, I think we made mistake something also. Yes, 140 नहीं, 160 था, उसमें से 40 माइनस होगा तो 120 बचेगा, नॉट 140 बचेगा। तो ये 120 होगा, ये 12 होगा, ये 1/12 आएगा। सो अगर हम अब देखें आंसर को, तो हमारे पास ऑप्शन डी आ जाता है, जो कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर आप mg की वैल्यू पुट कर दो तो आप नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct? Center of mass of body always coincide with the center of gravity of body। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बिकॉज जो इरेगुलर बॉडीज है वहाँ पे कोइंसाइड नहीं होता। तो यानी कि जहाँ पे भी ऑप्शन 1 आएगा तो वो तो इनकरेक्ट है, तो ये जो बी है ये तो इनकरेक्ट हो गया यहीं से। नाउ center of mass of a body is a point at which total gravitational torque on a body is 0। ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। A couple on a body produces both translational and rotational motion on the body। तो नहीं, ट्रांसलेशनल नहीं प्रोड्यूस करता, ओनली रोटेशनल प्रोड्यूस करता है। तो जहां पे थर्ड आएगा वो भी रॉन्ग हो गई। एंड कमिंग टू फोर्थ, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस स्मॉल एफर्ट कैन यूज टू ग्रेटर लेट। यस, तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 बोथ आर राइट, कि जो सेंटर ऑफ मास है वो ऐसा पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल टॉर्क 0 हो जाती है अगर बॉडी के लिए वो मैच करे तो, और मैकेनिकल एडवांटेज भी तभी एडवांटेज बोला जाता है जब वो ग्रेटर देन 1 हो जाए। सो ऑप्शन यहाँ पे 2 एंड 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A rod of weight W is supported by two parallel knife edges A and B and is in equilibrium in a horizontal position. The knives are at distance D from each other. The center of mass of the rod is at a distance x from A. The normal reaction at A is, तो A point पे normal reaction find out करनी है। तो first of all पहले रोड बना लेते हैं। सो सपोज कीजिए ये हमारे पास रोड है, और ये बोला गया है कि ये दो पैरेलल एजेस पे सपोर्टेड है ए एंड बी। सो ये ए हो गया सपोज, और ये बी हो गया, तो ये ए है, ये बी है। तो ए की वजह से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगी,
इसको Na बोला जा सकता है, B की वजह से नॉर्मल रिएक्शन होगी, इसको Nb बोला जा सकता है। नाउ सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, नाइफ्स आर डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर, तो ये वाला डिस्टेंस d है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड डिस्टेंस x फ्रॉम a, ये a से x डिस्टेंस पे है, तो सपोज ये सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे mg लग रहा होगा, और ये डिस्टेंस हमारे पास है x, तो जो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा d माइनस एक्स, बिकॉज टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में d है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बतानी है a के ऊपर, इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल रिएक्शन Na की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सो व्हाट वी कैन डू, हम अगर B पॉइंट के अराउंड टॉर्क लेते हैं, बिकॉज जो पूरा सिस्टम वो इक्विलिब्रियम में है, तो जो नेट टॉर्क है, टॉर्क क्या होगी, जीरो होगी। और अगर हम टॉर्क लें अराउंड पॉइंट बी पॉइंट के अराउंड टॉर्क लें, तो यहाँ पे जो NB है ये तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज ये पॉइंट बी पे ही लग रहा है। तो जो टॉर्क्स प्रोड्यूस करेंगे वो mg प्रोड्यूस करेगा और Na प्रोड्यूस करेगा। mg की जो टॉर्क होगी वो किस टाइप की रोटेशन देगी, वो एंटी क्लॉक रोटेशन देगी, यानी पॉजिटिव होगी। और जो Na है ये क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, मींस ये नेगेटिव देगा। तो ये दोनों टॉर्क एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। सो टॉर्क ऑफ mg should be equal to torque of Na। mg की टॉर्क हो जाएगी mg इंटू डी माइनस एक्स, और Na की टॉर्क हो जाएगी Na इंटू डिस्टेंस कितना है d। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट Na इज इक्वल टू mg d माइनस एक्स बाय d। और यहाँ पे mg को क्या माना गया है, वेट, mg को w माना गया है, तो ये हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे w लिख देते हो, w d माइनस एक्स बाय डी। So option D is the right answer. Next question. The radius of gyration of solid sphere of mass 5 kg about xy as shown in the figure. The radius of the sphere is, ये radius of sphere given है, वैल्यू ऑफ x बतानी है, और xy के अराउंड इसकी रेडियस ऑफ gyration क्या है, 5 मीटर है। सो ये क्या है, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है। जो सॉलिड स्फीयर है उसका सेंटर के अराउंड आई होता है 2/5 mr²। और अगर आप ऐसे एक्सिस के अराउंड निकालोगे जो उसके आउटर पॉइंट को टच करता है, तो उसमें जो आई डैश हो जाएगा 2/5 mr² प्लस mr², ये टोटल हो जाएगा 7/5 mr²। और अब अगर आप यहाँ से रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है mk² इज इक्वल टू 7/5 mr² हो जाएगा। तो m से m कैंसिल होता है, और यहाँ से जो k है, k की वैल्यू आ जाती है √7/5 ऑफ r, और ये k की वैल्यू रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू है 5 मीटर। तो ये किसके इक्वल है, ये है 5 मीटर के इक्वल है। और यहाँ से जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू आ जाती है 5 इंटू √5/7। तो जो रेडियस की वैल्यू पूछी गई है वो किस फॉर्म में पूछी गई है, 5 इंटू एक्स बाय √7। अगर आप कंपेयर करते हो 5 इंटू एक्स बाय √7, तो x यहाँ पे क्या है, √5। सो ऑप्शन हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The moment of inertia of a thin rod about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod is, ये वैल्यू गिवन है, लेंथ ऑफ द रोड नियरली 400 ग्राम रोड, तो उसका मास भी गिवन है। सो अगर आपके पास एक रोड है और उसका मिड पॉइंट के अराउंड आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है रोड के लिए ml²/12, और ये वैल्यू गिवन है 2400। तो यहाँ से जो L² आ जाता है, इट विल बी 2400 इंटू 12 डिवाइडेड बाय मास, और मास है 400। सो
इन दिस, ये देता हमें अप्रोक्सीमेटली 72 सेंटीमीटर स्क्वायर देगा, बिकॉज यहाँ पे आई में सेंटीमीटर स्क्वायर था। सो जो एल आ जाएगा वो आ जाएगा √72, और इसको आप लिख सकते हो समथिंग लाइक, आपके पास जो 9 है, 9 का स्क्वायर होता है 81, सो ये शुड बी 81 से लेस होना चाहिए। और अगर आप 8 का स्क्वायर देखते हो तो 64 होता है, तो ये उससे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 8 और 9 के बीच में आप देखते हो ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of radius of gyration of solid sphere of mass m and radius r about its own axis to radius of gyration of thin hollow sphere same mass and radius about its axis। so अगर हम solid sphere लें तो उसका own axis के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। तो इसके लिए जो रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगी, इसको m के स्क्वायर के इक्वल पुट करेंगे तो इट विल बी 2/5 √2π/5 इंटू r। और यहाँ पे दिया गया होलोस्फेयर, थिन होलोस्फेयर, तो होलोस्फेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², बिकॉज सेम मास और सेम रेडियस गिवन है, इसलिए हमने mr² दोनों में सेम लिया। तो इसके लिए जो रेडियस ऑफ जायरेशन आएगी इट विल बी √2/3 इंटू r। तो अगर अब आप k1/k2 करते हो तो ये आपको देगा √2/5 इंटू √3/2, बिकॉज ये इसके नीचे जाकर रिवर्स हो जाएगा और r से r कैंसिल हो जाएगी, √2 से √2 कैंसिल होगा और हमारे पास आएगा √3/5, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration ऑफ a thin uniform disk and axis passing through its center and normal to plane to the radius of gyration of the disk about its diameter। तो पहले तो डिस्क है हमारे पास और उसके सेंटर से पास हो रहा है, तो उसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आई फ्रॉम सेंटर, इट विल बी हाफ mr²। और यहाँ से जो रेडियस ऑफ जायरेशन आएगी के सी, वो आएगी 1/√2 ऑफ r। और इसको आप कैसे निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए आप आई को m के स्क्वायर के पुट करते हो और वहां से k की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तो के सी आ जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट सेंटर r/√2। एंड सेकंड क्या है, पहला तो सेंटर से पास हो रहा है और एक जो उसके डायमीटर से पास हो रहा है, तो रेडियस ऑफ डिस्क का डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/4 mr²। तो यहाँ से डायमीटर के अलोंग रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगी 1/√4 ऑफ r, और इसको लिख सकते हैं 1/2 ऑफ r। सो kc/kd हो जाएगा r/√2 इंटू r/2, जो कि ये है, r से r कैंसिल होगा और यहाँ पे जो आंसर आएगा यहाँ पे इट विल बी √2, और इसको रेशियो में लिख सकते हैं √2/1। सो आंसर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। From a circular ring of mass m, radius r, an arc corresponding to 90 to a 90 degrees sector is removed. The moment of inertia of the remaining part of the disk about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to plane of radius is k times mr², then the value of k is, हमें k की वैल्यू बतानी। तो पहले हम एक डिस्क बनाते हैं। सपोज हमारे पास एक डिस्क है और इसके हम 4 पार्ट्स कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये बोला गया है कि 90 डिग्री का सेक्टर रिमूव किया गया था, यानी कि 4, उससे हमारे पास इक्वल 4 पार्ट्स क्रिएट होते हैं 90 डिग्री के सेक्टर से। तो ऐसे रिमूव किया गया है, तो हम इनको सेक्टर्स को नेम दे देते हैं, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर डी और सेक्टर डी। और हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो अबाउट एन
एक लाइन ऐसे जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी उसके अराउंड कैलकुलेट कर रहे हैं जो ऐसे एक्सिस से पास हो। ओके, सो हमें ये पता है अगर हम इसके अराउंड ओ पॉइंट के अराउंड बात कर रहे हैं अबाउट एक्सिस, ये ओ है और इसको ओ डैश कर देते हैं, अबाउट एक्सिस ओ ओ डैश, तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जो कि एक रिंग है, रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा एम आर स्क्वायर। और ये आई किसके इक्वल है, बिकॉज यहाँ पे जो 4 पार्ट्स हैं चारों एक दूसरे के आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी प्लस आई ऑफ डी। और बिकॉज ये सभी के सभी आइडेंटिकल हैं तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इक्वल होगा, सो ये हो जाएगा 4 ऑफ आई। और यहाँ पे हम सपोज ले लेते हैं ए पार्ट के लिए लेते हैं बिकॉज सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इक्वल, तो ये हो जाएगा 4 ऑफ आई ए। और 4 ऑफ आई ए आई के इक्वल, और आई किसके इक्वल है, एम आर स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से जो आई ऑफ ए आ जाता है ये आ जाता है एम आर स्क्वायर बाय, यानी कि एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होगा। और जब ये बोला गया है कि आपने एक पार्ट को रिमूव कर दिया, एन आर कोरस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर, 90 सेक्टर हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास कितने बचते हैं, हमारे पास 3 पार्ट्स बचेंगे। तो अगर हमारे पास 3 पार्ट्स बचते हैं तो 3 पार्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 3 इंटू 1 पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि होता है एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाय 4, तो हमारा आंसर होगा 3/4 ऑफ एम आर स्क्वायर। तो बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा। और ये बोला गया कि k टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर एक पार्ट का पूछते तो एम आर स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे 3 पार्ट्स बचते हैं तो 3 हो जाएगा 3/4 एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter. A solid cylinder of same mass and same radius also rotating about geometrical axis with an angular speed twice that of sphere. The ratio of their kinetic energies with p. So जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको अगर हम E से रिप्रेजेंट करें रोटेशन वाली, तो इट विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो अगर हम E1 बाई E2 करते हैं तो हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी I1 ओमेगा 1 स्क्वायर बाय I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। नाउ ऑफ स्फेयर का मास m है, रेडियस r है, और जो सिलेंडर है उसका भी सेम मास और सेम रेडियस है, तो जो सॉलिड स्फेयर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है ओमेगा 1 स्क्वायर। दूसरा हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है हाफ एम आर स्क्वायर, और इसके लिए जो एंगुलर स्पीड है वो ट्वाइस है दैट ऑफ स्फेयर, मींस अगर स्फेयर के लिए ओमेगा 1 थी तो इसके लिए 2 ओमेगा 1। सो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखें तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिलेगा 2/5, ये रिवर्स हो जाएगा तो ये देगा आपको 2/1, ये है ओमेगा 1 स्क्वायर और ये है 4 ओमेगा 1 स्क्वायर। सो ओमेगा 1 से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर बचता है 1/5 और 1:5। अगर आप यहाँ पे देखो ऑप्शन 1:5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A light rod of length L has two masses m1 and m2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through center of mass. अब देखिए जो रोड है वो लाइट है, मीन्स रोड का अपना कोई मास नहीं, बट m1 और m2 हैं दो मासेस, इनके पास मास है और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा लेंथ L के इक्वल। सो यहाँ पे m1 होगा, यहाँ पे सपोज m2 है और इनके बीच का डिस्टेंस L है। नाउ जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है इस रोड के, मींस जो इनके बीच की जिनके बीच की जो रोड है उसके परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास होता है,
तो सपोज यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास है तो ये ऐसे पास होता है एक्सिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली 3 मासेस हैं, M1 M2 और एक रोड का भी अपना मास होता है, बट बिकॉज रोड लाइट गिवन है तो रोड के मास को कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली M1 और M2 के हिसाब से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज कीजिए ये डिस्टेंस अगर x ले लेते हैं हम, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L माइनस एक्स, और सेंटर ऑफ मास के लिए हम बोल सकते हैं दैट M1 x इज इक्वल टू M2 L माइनस एक्स, और यहाँ से आ जाता है M1x इज इक्वल टू M2L माइनस M2x, और ये x को इधर लेके जाएंगे तो x इंटू M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M2L, और x की वैल्यू आ जाती है M2L डिवाइड M1 प्लस M2, और हमें बिकॉज L माइनस एक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होगी, तो L माइनस एक्स आएगा L माइनस M2L by M1 plus M2, so M1 plus M2 M1L M2L minus M2L, M2L से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा M1L plus M1 plus M2 by M1 plus। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई और L माइनस एक्स की वैल्यू आ गई, मीन्स जो आपका सेंटर ऑफ मास है उससे हमारे पास दोनों मासेस का डिस्टेंसेस आ गए, और बिकॉज ये जो दोनों पॉइंट हैं ये इनको हम क्या मानेंगे, पॉइंट मासेस। जो M1 एंड M2 है उनको हम क्या मानेंगे, पॉइंट मासेस। और पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और वो डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला है, इसको अगर हम O डैश बोले तो जो M1 है इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा M1 इंटू एक्स स्क्वायर, और M2 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा M2 इंटू L माइनस एक्स का स्क्वायर। सो M1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा M2 स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाय M1 प्लस M2 स्क्वायर, और M2 इंटू L माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये L माइनस एक्स की वैल्यू ये है, ये जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये देगा M1 स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हो M1 M2 और L स्क्वायर सब में कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे, M1 M2 और L स्क्वायर कॉमन है, और साथ में दोनों में M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर भी डिवाइड का कॉमन है, तो ये भी बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे अंदर बचता है, यहाँ से बचेगा ओनली M2 और यहाँ से बचता है M1, और ये इसके स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा तो आंसर बचेगा M1 M2 L स्क्वायर डिवाइड बाय M1 प्लस M2। सो अगर हम ऑप्शंस मैच करते हैं तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। From a disk of radius r and mass m, a circular hole of diameter r, whose rim passes through center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about perpendicular axis passing through the center? तो हमारे पास पहले रेडियस r की और m मास की डिस्क है। So let us draw. इसको विद फिल बनाते हैं। ओके, तो विदाउट फिल बनाते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r। सो ये होगा इसकी रेडियस
और ये इसका सेंटर है, सेंटर O। अब इसमें से एक होल कट किया गया जिसका डायमीटर r है, यानी कि इसकी रेडियस क्या हो जाएगी r/2, whose rim passes through the center, मीन्स उसका रिम सेंटर से पास होता है। तो आपका जो रिम है उसको कुछ ऐसे कट किया गया। जो रिम है उसको कुछ ऐसे कट किया गया है और इसका डायमीटर आप देख रहे हैं, तो डायमीटर इसका d हो जाएगा और ये सेंटर से पास होके जा रहा, इतने पार्ट को कट किया गया। तो हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि ये वाला पार्ट कट किया गया। सो हमें जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। सो लेट अस कंसीडर कि जो आई होल है या आई ऑफ होल डिस्क, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, और वो एक्सिस कहां से पास हो रहा है, पॉइंट O से पास हो रहा है, जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यहाँ पे हमारे पास एक डिस्क है, तो ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, मीन्स कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ एम आर स्क्वायर। और जो आई है पूरी डिस्क का, वो कितने पार्ट से बना है, दो पार्ट से बना हुआ है। एक तो कौन सा पार्ट जो हम रिमूव करेंगे, यानी कि ये व्हाइट वाला जो पार्ट है, एक तो हम ये जिसको रिमूव करने जा रहे हैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बना हुआ है, प्लस आई ऑफ रिमेनिंग जो बच जाता है इसको रिमूव करने के बाद, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बना हुआ है। तो अगर हम आई ऑफ रिमूव्ड पता कर पाए, आई ऑफ डिस्क हमें पता है, तो हम इसको इधर ले जाके माइनस कर सकते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो तो जो आई ऑफ रिमूव है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है उसको हमें रिमूव करना है, हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशंस करते हैं। सो ये भी हमारे पास एक डिस्क है, इसकी रेडियस हमें पता है कि इसकी जो रेडियस होगी, ड्रॉ, इसकी जो रेडियस है वो r/2 है, ये हमें पता है बिकॉज इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है r, जो रिमूव पार्ट है इसका डायमीटर r गिवन है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी r। नाउ कमिंग टू मास, अब हमें इसका मास फाइंड आउट करना है, रेडियस इसकी r/2। सो ये जो डिस्क है ये क्या होगी, इट इज ए यूनिफॉर्म डिस्क। तो अगर डिस्क यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस एरिया, एरिया में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो जो मास डेंसिटी हो जाएगी, मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा, बट बिगर डिस्क के लिए मास इंटू पाई आर स्क्वायर। और जो आपके पास स्मॉल डिस्क है, स्मॉल डिस्क का एरिया कितना है, पाई इंटू r/2 स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ स्मॉल डिस्क। तो जो मास ऑफ स्मॉल डिस्क हो जाएगा मास डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ स्मॉल डिस्क, so m/pi r square मल्टीप्लाई पाई r/2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 1/4, सो मास आ जाएगा m/4। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल डिस्क, आई ऑफ स्मॉल डिस्क हो जाएगा, वो होता है हाफ मास ऑफ स्मॉल डिस्क इंटू रेडियस ऑफ स्मॉल डिस्क का स्क्वायर। सो इट विल गिव हाफ मास ऑफ स्मॉल डिस्क है m/4 और रेडियस ऑफ स्मॉल डिस्क है r/2 का स्क्वायर, यानी कि r²/4। तो यहां से जो हमारे पास आंसर आएगा इट विल बी
mr square divided by 4 2 into 4 8 into 4 32। तो जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है स्मॉल डिस्क का, ये कहां से होगा? ये हमने निकाला है एक एक्सिस के अराउंड, जो एक्सिस इस स्मॉल डिस्क के सेंटर से पास हो रहा होगा ऐसे। बट हमें तो इस डिस्क का, बिकॉज जो हमने ये फॉर्मूला किया है, इस फॉर्मूला में हम जो सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं वो किस एक्सिस के अराउंड ले रहे हैं? वो येलो एक्सिस के अराउंड ले रहे हैं। और हमने जो अभी डिस्क का, स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, वो हमने उसके सेंटर के अराउंड निकाला। तो हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड शिफ्ट करना होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो आई ऑफ स्मॉल अराउंड येलो आ जाएगा, इट विल बी mr square by 32 प्लस मास ऑफ स्मॉल डिस्क यानी कि m/4 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि r/2 का स्क्वायर। सो इट विल बी mr square by 32 प्लस 4, ये 4 होगा, 4 into 16, सो mr square by 16, दोनों को ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 3 mr square by 32। तो ये आ जाएगा स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड येलो एक्सिस, तो यानी कि जो रिमूव्ड पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो आई डिस्क है हाफ mr स्क्वायर इक्वल्स टू आई रिमूव्ड है 3 mr स्क्वायर बाय 32 और प्लस आई रिमेनिंग। तो यहां से आई रिमेनिंग की वैल्यू आ जाएगी हाफ mr स्क्वायर माइनस 3 mr स्क्वायर बाय 32। और हम क्या कर सकते हैं, 32 बनाने के लिए 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 16 माइनस 3 हो जाएगा 13 mr स्क्वायर बाय 32। तो अगर हम ऊपर जाते हैं, सो जो ऑप्शन ए है दिस इज द राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन के साथ हम आज की इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे सिलेबस में क्वेश्चंस में कवर किया वो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाई होगी। अगर आपको कोई डाउट्स हैं स्टिल तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी मोस्ट वेलकम है, कमेंट सेक्शन में आप उनको भी डाल सकते हैं। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो आप हमारी प्लेलिस्ट, चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ पे नीट और जेई दोनों की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। आल्सो इफ यू वांट टू डोनेट समथिंग तो आप हमें इस क्यूआर कोड पे स्कैन करके एवर अमाउंट यू कैन डोनेट, आप डोनेट कर सकते हैं। उससे हमें बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर और न्यू बुक्स लेने में मदद मिलती है, जिससे हम आपके लिए इन फ्यूचर और बेटर कंटेंट लेके आ सकते हैं। सो टिल देन keep on studying. Thanks for watching, and if you found these videos useful then do like, share and subscribe. We will meet in next video.